self-defense training and sessions are very important because when an emergency comes, it never tells and comes. मुझे जो याद आ रहा है उसका नाम था ब्लू वेल और पबजी। उसके हाथ में चोट लग गई, उसके हाथ में नील पड़ गया है, लेकिन जब मैंने उसके हाथ पे नील देखा और मुझे लगा कि स्कूल की ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस और किसी स्कूल में उसने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट, केवल फिजिकल तक सीमित नहीं रह गई है, ये फिजिकल, इमोशनल और जो लेटेस्ट अभी चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक स्कूल में 8 घंटे बिताता है लगभग। Mom and dad at school. Security at school. Home away from home. Hello everyone, I am Devashree Chaturvedi from class 8C and joining me is my co-host Anusha Gaur. We are here at GD Goenka Gap platform. Hi, I'm Anusha Gaur. In this podcast, we are not just talking about gates and locks, but we are exploring security from all the dimensions: physical, emotional and digital. Goenka Namaskar, I am Harpreet and I'm glad to join this podcast with my two lovely kids, Devashree and Anusha. Today we have 4 guest speakers. They are no more the guests actually, they are our lovely Goenkan parents. So what are we waiting for? Let's begin at today's podcast on the title Security at School, Home Away from Home. Good morning everyone. My name is Anirudh Yadav. I am posted here in Agra as Deputy Director of Education. My son Rajvardhan studies in GD Goenka School in LKG B. हेलो, मेरा नाम विनय सक्सेना है। आई एम अ रेडियो प्रोफेशनल और मैं पिछले 10-15 वर्षों से रेडियो में हूँ। इस समय मैं रेडियो सिटी का प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हूँ और मुझे खुशी है कि मेरा बच्चा भी इस जीडी गोएंका का एक पार्ट है। शी इज़ इन 8th स्टैंडर्ड और आज मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ। थैंक यू सो मच। Hello, I am Supriya Aluwalia, a certified corporate trainer from the Human Resource Management domain. My son Reyansh Aluwalia is studying in class 3 in GD Goenka and I'm honored to be a part of this podcast and looking forward to a meaningful discussion. नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं CGST डिपार्टमेंट में अधीक्षक के पद पे कार्य करता हूँ। मेरी 2 बेटियाँ मनाली शर्मा और जिज्ञासा शर्मा GD गोएंका स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ रही हैं। थैंक यू। Nowadays, school security is not just about having high walls or having guards at the gate. It's more important that we should feel comfortable and safe each and every single day, whether it be inside or outside our school. So, sir, जब आप स्कूल जाते थे तब स्कूल सिक्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या उस समय भी स्कूल सिक्योरिटी और सेफ्टी की उतनी ही चिंता होती थी जितनी आज है? Sir, please explain to our viewers. In older times, school safety was limited to physical safety and security. But in recent times, the domain of school safety and security has expanded and it has included digital domain also. It has also included emotional and mental safety. A child should not only be physically safe and secure in the school premises, but he should also feel like he's comfortable and he's like at home. So he should be emotionally and mentally feel safe and secure. So I think the domain of safety and security, the meaning of safety and security has expanded in recent times. So wonderful opinion. I totally agree with it. So what's your insight on this? ओके, ऑलराइट। तो मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जैसे जैसे समय हमारा बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी की जिस तरह से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उनकी बेहतर होनी चाहिए बच्चों की, वैसे ही स्कूल को भी लगता है कि उनकी सिक्योरिटी बच्चों के प्रति और ज़्यादा होनी चाहिए। सो आई थिंक कि जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, सिक्योरिटी के मायने बदलते जा रहे हैं। पहले लोग समझते थे कि सिक्योरिटी का केवल मतलब है कि बच्चा स्कूल में अंदर आता है और फिर बाहर जाता है, वहां तक ही सिक्योरिटी सीमित है। लेकिन आज हमने ये भी देखा है कि स्कूल में जिस तरह से जीडी गोएंका को मैं फील करता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे सिक्योरिटी है, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं आ सकते, पेरेंट्स या गार्जियंस ही उनके यहाँ पे स्कूल पे ड्रॉप करते हैं, या बच्चा अगर जाता है तो फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चा किसके हाथों सुपुर्द किया गया है।
एक अच्छी बात ये होती है कि बच्चों के जो पेरेंट्स या जो उनके अभिभावक आते हैं उनके पास एक स्पेशल कार्ड होता है जिसमें मेंशन होता है कि ये पर्सन जो है इसको बच्चे को लेने का अधिकार रखता है। तो ये बहुत अच्छी सिक्योरिटी है, समय के साथ बदलती जा रही है, चाहे वो फिजिकल सिक्योरिटी हो, चाहे वो डिजिटल सिक्योरिटी हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, सबके मायने बदले हैं। और मुझे अच्छा लगा कि ये सवाल आपने बच्चे पूछा है और ये सिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती रहनी चाहिए ताकि पेरेंट्स भी खुश रहें और स्कूल का स्टाफ और स्कूल का मैनेजमेंट भी ये पूरा सेटिस्फेक्शन अपने आप में रखे कि हाँ, अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है और वो स्कूल से घर जा रहा है तो पूरा सिक्योर है, उसके पेरेंट्स को और किसी को भी किसी भी तरह की कोई इस तरह की भावना नहीं आ रही है कि मेरा बच्चा कहाँ। Ma'am, what do you want to say on this topic? I'm in absolute agreement with the points brought out. So previously security we feel had a very narrow focus. The boundaries were very clear. In school the school was responsible, whereas at home the parents were responsible. But now when we talk about keeping our children secure, it's more of a collaboration. ये एक partnership है school और students और teachers के बीच में. So we do not focus only on physical safety. It is equally important to focus on the emotional security, on the digital well-being and awareness of the students. Students कब secure महसूस करते हैं? When they feel trusted, when they feel heard, when they feel they have a voice and they are not afraid to use their voice. So I think both the school, the parents and the teachers have an equal responsibility in ensuring security is provided to our children. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसा बाकी पैनल मेंबर्स ने बोला, मैं उससे सहमत हूँ। पहले टाइम में जिस तरह से स्कूलों की सेफ्टी रहती थी और अब 20 साल में इतना बदलाव आ चुका है हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स में और इमोशनल वेलबींग में इतना चेंजेस आ चुके हैं कि अब केवल सेफ्टी केवल फिजिकल तक सीमित नहीं रह गई है। ये फिजिकल, इमोशनल और जो लेटेस्ट अभी चल रहा है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक स्कूल में 8 घंटे बिताता है लगभग, स्कूल जाने से लेकर वापस आने तक उसके 8 घंटे बीतते हैं और पूरे 24 घंटे में से वो अपना 1/3 हिस्सा स्कूल में ही बिताता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में वो सेफ महसूस करे, सिक्योर महसूस करे। जिस तरह से पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चे को कि वो एक स्कूल में भेज रहे हैं जिससे वो अपनी चिंता से मुक्त हो सकें और बच्चा पढ़े वहाँ पे अच्छे तरीके से, तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से वहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं और किस तरह से बच्चे का ध्यान रखा जाता है। Thank you, sir. Wonderful opinion. I tell everything to my parents, whether it's about school, teachers, or friends. I tell them everything without any hesitation. So, ma'am, my question is to you. घर के एनवायरनमेंट को इतना इमोशनली सेफ कैसे बनाया जा सकता है कि कोई भी बच्चा अपनी गलती या प्रॉब्लम्स बताने से डरे नहीं? A very pertinent question. Along with physical safety, emotional safety is a very important topic for growing children. The key to making sure that our children feel safe enough to speak up to us is communication, communication and more communication. हम जितना बच्चों से बात करें as parents and teachers are also able to have the same rapport at school, the children will feel accepted, safe and heard. बच्चों को कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम उनको जज कर रहे हैं या वी कैन टेक प्यूनिटिव एक्शन या उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो चीज़ कोई भी चीज़ हमें फ्रीली बताएंगे. सो आई थिंक दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. एंड सेकेंडली वी शुड बी वेरी अवेयर एज पेरेंट्स फॉर एनी साइंस इन आवर चिल्ड्रन. If they are not communicating, if they are seeming depressed, if they are seeming anxious, हमें उनसे बात करती रहनी चाहिए कि उनके फ्रेंड्स के साथ उनका कैसा relationship है. Are they facing any type of bullying, any kind of mistreatment? Are they not feeling safe? And जब हम communicate करेंगे, we ourselves will get knowledge and we will be better prepared to tackle our children with love, care and respect. Thank you, ma'am. I truly agree with you. It is rightly said that students' second home is school. It is definitely true that it is the responsibility of the school and parents to take care of the children 50% each side. Of course, ये एक team work है, school का और parents का. I truly agree with this. I really want to know the opinion of my lovely parents about the same.
सर, क्या आपको लगता है कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी 50% होती है तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी 50% होती है? जहां पर स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है, क्या वहीं से पेरेंट्स की शुरू होती है? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों की सिक्योरिटी में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर है। इवन इसको हम बाइफरकेट नहीं कर सकते 50-50%, ये दोनों इन हैंड चलेंगे, एक कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। पेरेंट्स और टीचर्स का जो सेफ्टी है वो बच्चों को देने के लिए दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। जिस तरह से बच्चे स्कूल में एक घर का माहौल अगर उनको मिलेगा, जिस तरह से वो अपने घर पे बात कर पाते हैं अपने पेरेंट्स से, उस तरह से अगर टीचर्स को भी वो वैसे ही ट्रीट कर सकें, वैसे ही बात कर सकें, तो उनमें इमोशनल कॉन्शियस डेवलप होगा। वो अपनी कोई भी बात अच्छे से कह सकेंगे। किसी भी तरह की बुलिंग, ईव टीजिंग या कोई भी ऐसा न्यूसेंस क्रिएट होता है जिससे वो अपने टीचर से आराम से कह सकें, तो उनके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी डेवलप होती है, जिस तरह उससे वो सिक्योरिटी महसूस करेंगे। और इसके लिए टीचर्स को रेगुलर ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए, और साथ ही साथ उतना ही ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी इसके रिगार्डिंग एक इन हाउस कैंप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, जिस तरह से उनको भी जानकारी मिलती रहे कि वो किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ घर पे भी वो सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। Thank you so much for your lovely answer, sir. I truly agree with this thing. It's a teamwork. We have to go hand in hand. Only then we'll be able to secure our lovely children. Thank you. सो सर, ऐसी कौन सी गोल्डन हैबिट है जो आप हमें बताना चाहेंगे और हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सके और हमें मदद करे? सर, प्लीज टेल अस व्यूअर्स। No doubt, AI has penetrated almost every aspect of our life. Before I talk about golden habits which we require to safeguard ourselves against the dangers of AI, I would like to mention a few risks which are associated with the AI, particularly with the children. आज हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और जो खतरे AI या टेक्नोलॉजी और मोबाइल से संबंधित हैं, उसमें सबसे बड़ा जो परेशानी है वो ये है कि जब हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब हम सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उससे कई अनवांटेड क्रिमिनल्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके डीप फेक वीडियोस, डीप फेक फोटोज बना सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन जाती है, हमारी वीडियोस जो जाती हैं, उसके आधार पर कई बार वो हमारी AI फेक वॉइस जनरेट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हर छोटे बच्चे का जो 10th, 11th, 12th में है, उनके आजकल बैंक अकाउंट्स भी हैं, तो एक डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में भी हमें अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा जो है AI और टेक्नोलॉजी का एक और जो रिस्क है वो ये है कि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गेमिंग। बहुत से गेम्स के बारे में हमने सुना है, जैसे एक पर्टिकुलर गेम मुझे जो याद आ रहा है उसका नाम था ब्लू व्हेल और PUBG। आज शायद ही कोई बच्चा होगा जो अपने टीन एज में होगा जिसने PUBG जैसे ऑनलाइन गेम्स जो हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स हैं, वो नहीं खेले होंगे। और ये जो गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, उनके अंदर जो है आपका वायलेंस बिहेवियर, एग्रेशन, उनकी फिजिकल हेल्थ भी ड्यू टू लॉन्ग टाइम ऑफ प्लेइंग दीज गेम्स वो अफेक्ट हो रही है, उनके नकल्स में पेन हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए पेरेंट्स की, स्कूल की और बच्चों की, तीनों की जिम्मेदारी ये है कि हम लोग इसके संबंध में ओपनली बात करें, डिस्कस करें, जैसे हम अभी कर रहे हैं। इसके अलावा एक टाइम टेबल होना चाहिए, बिकॉज हम लोग कट ऑफ नहीं रह सकते टेक्नोलॉजी से। ट्रस्ट होना चाहिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर, पर एट द सेम टाइम उन्हें वेरीफाई भी करना चाहिए कि उनके बच्चे ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, वो कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं, कितना उनका स्क्रीन टाइम है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो भी एक्टिविटी ऑनलाइन करें उस पर एक डिस्टेंस के साथ सही, लेकिन एक थोड़ी नज़र रखें कि कहीं हमारे बच्चे किसी गलत संगत का शिकार तो नहीं हो रहे। Sir, yes, it's totally true. My father also agrees on this. Once my grandmother told me that at their times people used to leave their home stores open and they didn't even have a single doubt about their safety in their minds. I was completely amazed because today we use many types of heavy locks, passwords on our mobile phones, and if sometimes we leave our doors open, we always have a doubt on our safety. So sir,
मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्या समाज में बढ़ता ये डिस्ट्रस्ट ही सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी के लिए? पहले के टाइम पे लोग एक दूसरे पर इतना भरोसा करके खुद को सेफ कैसे फील करते थे? ऑलराइट, तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि पुराने समय में लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी सिक्योरिटी और उनकी सेफ्टी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन, उनके बीच में रिलेशनशिप, उनके बीच में जो बातें होती थी वो बड़ा एक दूसरे के प्रति रहती थी। आजकल के लोगों में सेपरेशन हो गया है, लोग इंडिविजुअलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, वो सोचते हैं कि हम हैं और हम ही हैं। सो सिक्योरिटी की फीलिंग कहीं ना कहीं यहाँ से क्रिएट हो जाती है। लोगों को लगता है कि जब वो सामने वाला इंसान हमसे बात ही नहीं करता या हम उसके बारे में जानते ही नहीं है तो वो उसका नेचर क्या है, वो आगे क्या कर सकता है, उसके प्रति धारणाएं हमारे मन में डेवलप होने लगती हैं। सो पुराने के समय में लोगों को इतना आसपास के माहौल में बिलीव था कि वो हमारे साथ नहीं कर सकते, हम उसके बारे में जानते हैं, उसका नाम ये है, उसके दादा परदादा ये रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड ये है। अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, हमें अपने नेबर का, नेक्स्ट नेबर का पता नहीं होता कि उसका नाम क्या है। अगर हमारे पास ब्लैंकेट वाला या कोई आता है पूछता है कि ये कौन है तो हम अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं होता क्या होता है। तो हम सिक्योरिटी को कैसे हम मायने दे सकते हैं कि हम सिक्योर हैं, क्योंकि हमें किसी के बारे में पता ही नहीं है। सो आई थिंक कि एक रीजन ये भी है, लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है तो उनके मन में इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है। Safety and security begins from the moment when the children step in the school. So the question is कि स्कूल में बच्चा आता कैसे है? Of course, they have different facilities. Sometimes parents drop them and we have bus facilities as well. So in the bus facilities, GD Goenka Public School provides a lovely space to the students where teachers and nannies, conductors, drivers, we all make sure that the child is safe. We drop them till the last stop so that the child feels safe and secure. I want to ask this question from ma'am, that ma'am's son also goes to home by bus, and the teacher who stays there, the teacher in charge of the bus, drops the child at the last stop. So ma'am, are you satisfied with this facility provided by GD Goenka? Absolutely. My son travels nearly 50 minutes one way to reach school. But as parents, we feel very secure. For us, the school day does not begin when the child comes into the school premises. Rather, when we drop him at the bus stop and he steps in the bus, the school day starts from then. Now, when children are not directly monitored in the bus, it creates a fear in the minds of the parents. But here at GD Goenka, we know that there are trained attendants, staff members who are there monitoring the children, correcting them if they are indisciplined, letting them know not to put their hands out, not to walk in a moving bus, not to use bad language, and not to use that time in an unconstructive way. A strict eye is being kept at a distance, and the children are also unwinding in the bus. They are also having good social interaction, and they themselves feel very secure that a teacher from the school is present for them to voice any opinion. There is regular communication with us as parents. In case the bus is getting delayed, we are informed. We are able to track the bus. At times my son has not felt well in the bus where he has had vomiting or stomach ache. I am immediately called, so I am ready waiting for him at the stop and ready to take him home. So as parents, we are very reassured that the school transport is regulated and they are closely monitored and they are going in a very safe and secure environment. Thank you so much, ma'am. We are pleased that you are satisfied, and we'll continue doing the same duties every single day, because the goal of the parents and the goal of our school is same: the safety and security of our lovely students, our lovely Goenkans. At GD Goenka Public School, we practice regular mock drills so that we can face situations like earthquakes and fires without even panicking. So my question is to sir, क्या हमारे घरों में भी ऐसी इमरजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए ताकि सभी परिवारों के सदस्य एक साथ आके अपने आप को सेफ कर सकें? आपने बहुत सही सवाल किया है।
कि स्कूलों में तो इस तरह की मॉक ड्रिल्स जैसे कि जीडी गोइंका है, एक एग्जांपल है डिसिप्लिन का और एक अच्छे स्कूल का कि यहाँ पे रेगुलर मॉक ड्रिल्स होती हैं, लेकिन हमारे घरों में और हमारे आसपास इस तरह की मॉक ड्रिल्स या फिर किसी तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस ये हमारे पास है कि नहीं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई में अभी हम लोग इतने तत्पर और सक्षम नहीं है कि इस तरह की जानकारी सभी के पास है, और इसके लिए जितना एक नागरिक के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को खुद भी अपने ऊपर अवेयर होना चाहिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए अवेयर होना चाहिए, नेचुरल कैलेमिटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हमको पता होना चाहिए। हाँ, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत पुलिस प्रशासन हमारी मदद करता है, लेकिन हमको खुद भी इतना अवेयर होना चाहिए, अपने आसपास में जो भी बड़ा है उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सोशल सेटअप के अंदर एक दूसरे को मदद करनी चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से हम डिजास्टर मैनेजमेंट और इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज से बच सकते हैं। और जीडी गोइंका स्कूल से बाकी स्कूलों को भी मदद लेनी चाहिए और सीखना चाहिए कि किस तरह से प्रॉपर डिसिप्लिन और डिजास्टर मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं। Thank you, sir. Sir, I totally agree with it. At GD Goenka, we are taught about the importance of saying no. And it is very crucial to understand that we all have full ownerships over our bodies. So, sir, my question is कि इस सेंसिटिव टॉपिक पर बच्चों से बात करते समय ऐसी कौन सी मेजर पॉइंट्स है जिस पे फोकस करना चाहिए ताकि वो डरे नहीं बल्कि अवेयर और कॉन्फिडेंट बने? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये टॉपिक है, क्योंकि ये आज के समय में एक मेजर प्रॉब्लम है, वो यह है कि हम अपने बच्चों को उनके अंदर एक सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप करें। और हमारा अगर टीचर्स का और पेरेंट्स का बच्चों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है, बच्चों के अंदर एक सेल्फ एस्टीम है, तो यदि कोई उनको गलत तरीके से छूता है तो वो उसके बारे में तुरंत अपने स्कूल में अपने टीचर को या अपने पेरेंट्स को, द पर्सन whom they trust, they should inform them. नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, जो रेगुलेशंस हैं, हमें रेगुलरली स्कूल में चाहिए कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर कराएं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक कल्चर डेवलप करें अपने स्कूल में, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में समझें, एक समझ रखें और वो ये जान सकें कि हाउ टू रिस्पेक्ट विमेन, हाउ टू ट्रीट द अदर जेंडर रिस्पेक्टफुली। और ये जो टॉपिक है ये अकेले मुझे लगता है कि लड़कियां इसकी शिकार नहीं होती। गुड टच और बैड टच जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक लड़के भी इसका शिकार होते हैं। तो हमें पेरेंट्स को ये अवेयर रहते हुए हमें दोनों ही जेंडर जो हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको अवेयर करना होगा। स्कूल में मुझे लगता है कि जीडी गोइंका स्कूल में एक काउंसलर भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे टीचर से अपनी बात नहीं कह पाते हैं या प्रोफेशनली जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति है ऐसे टॉपिक्स को हैंडल करने के लिए वो एक साइकोलॉजिकल काउंसलर्स है। और जीडी गोइंका में मुझे लगता है कि ऐसे काउंसलर्स मौजूद हैं जो बच्चे अगर अपनी मन की बात वो सिर्फ गुड टच या बैड टच से रिलेटेड नहीं, अगर वो कोई और प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं तो वो अपने स्कूल काउंसलर से जाके बात कर सकते हैं। हमें अपने घर पर भी इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना होगा कि अगर किसी बच्चे को किसी भी कारण से अगर ये लगता है कि कोई उसको गलत तरीके से छू रहा है तो अपने वो पेरेंट्स को वो खुलकर इस बारे में बता सके, उसको ये ना लगे कि उसकी गलती है। जैसा कि अभी सर ने कहा that we have a counselor in our school, but not only counselors, we have teachers that teach us discipline, etiquettes, values and manners. तो मेरा ये क्वेश्चन सर से है कि क्या इन एटिकेट्स, वैल्यूज और मैनर्स का कोई कनेक्शन है इन सेफ्टी और सिक्योरिटी से? मैं जानना चाहता हूँ। ओके, ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली जब हम स्कूल की बात करते हैं बच्चे, तो स्कूल में क्या होता है कि कुछ टीचर्स का मानना होता है कि केवल हम उनको पढ़ाते हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। एक 25 मिनट्स या 45 मिनट्स का उनका एक पीरियड होता है, वो उसको देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ स्कूल्स लाइक जीडी गोइंका ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को केवल उनके सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई नहीं जाए, उन्हें वो वैल्यूज़ बताई जाएँ, उन्हें वो डिसिप्लिन समझाया जाए
वो चीज़ें समझाई जाए उनके फ्यूचर को जो एनहेंस करें, राइट। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि जब इन सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन होता है, जब केवल पढ़ाई ही नहीं, उसके साथ चीज़ों को समझाया जाता है, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो दूसरों से बात करने का तरीका हो, चाहे वो विनम्रता हो, जब ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो उसकी ज़िंदगी में एक नई चीज़ ऐड करती हैं, राइट। सो जब बच्चे में ये क्वालिटी ऐड होती हैं तो ऑब्वियसली उसकी सिक्योरिटी पे भी, उसकी और चीज़ों पे भी असर पड़ता है। जब बच्चा हर डायमेंशन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करता है तो वो हर डायरेक्शन से अपने आप को सुरक्षित रखने में कैपेबल भी फील करता है, राइट। सो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जो स्कूल में सिखाई जाती हैं वो उसके बच्चे को सिक्योरिटी देती हैं, उनके बच्चे को डेवलपमेंट में उनको मदद करती हैं, और वो सारी चीज़ें बच्चे के आगे फ्यूचर को भी बहुत अच्छा करती हैं। Wow, sir, what a wonderful opinion. At GE Goenka, we are trained in sports and martial arts. This gives us immense of self-confidence that we can protect ourselves in any situation. So, my dear parents, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है आज के दौर में हर स्टूडेंट के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि मैथ्स या साइंस की पढ़ाई? बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि जितना मैथ्स साइंस की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। मेरी बड़ी बेटी जिज्ञासा शर्मा जो कि फर्स्ट क्लास में है अभी, उसने अभी समर कैंप में ताइक्वांडो सीखा है और वो घर पे आके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डेमोस्ट्रेट करती है और अपनी छोटी बहन को भी सिखाती है कि आज मैंने क्या सीखा और किस तरह से वो अटैक्स को संभालेगी। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये ट्रेनिंग्स उनको स्कूल में मिल रही हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी सोशल एनवायरनमेंट में इस तरह के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो इस तरह से हमारे आसपास हैं और हमारे बीच में से ही हैं। तो उनसे बचने के लिए हमको सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए, और ना ही लड़कियों को, सभी को, हर किसी को एक तरह से अपना सेल्फ डिफेंस आना ही चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह के समर कैंप्स GD गोएंका ऑर्गेनाइज करवाता है जिससे ये सब सीखने को मिलता है। Ma'am, what's your opinion? I completely agree. Self-defense training and sessions are very important because when an emergency comes, it never tells and comes. So, along with self-defense, it is very important to train our students in situational awareness. They should be able to assess and read tough situations. They should be alert and they should know that they are in a dangerous situation. They should have the confidence to assertively say कि नहीं, ये ठीक नहीं है, आप ये हमारे साथ नहीं कर सकते हो, आप हमें यहाँ नहीं ले जा सकते हो। They should not feel scared to contact another responsible adult in such a situation. और इसके साथ साथ स्कूल में उनको सेल्फ डिफेंस सेशंस की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स शुड आल्सो बी पुट अनअवेयर इन टफ सिचुएशंस। उनके साथ रोल प्लेस करने चाहिए जहां उनको सिखाया जाए किस तरह दे कैन बी कॉट अनअवेयर एंड हाउ दे शुड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड एंड कीप ऑल सेंसेस अलर्ट टू कीप देमसेल्व्स सेफ। Sir, what's your point of view? हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सेल्फ डिफेंस के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, और बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ उन्हें पोलाइटनेस अपनी शो करनी होती है। मतलब नेचुरली उनके मन में होता है कि अरे नहीं, मेरा बच्चे के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ओ उसे ज़रा सी चोट लग गई, नहीं 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 नहीं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं या उन्हें इस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो ऐसे टाइम पर जब सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत होती है तब वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। अगर मैं छोटी सी बात कहूँ, अगर बच्चे को चोट लग जाती है हाथ में, मेरी बेटी ताइक्वांडो सीखती है, उसका अभी सेशन हुआ था, एक ये समर सेशन हुआ था, उसमें भी उसने सीखा है, कई जगह स्कूल की तरफ से दूसरे स्कूल्स में भी गई हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे उसके हाथ में चोट लग गई, उसके हाथ में नील पड़ गया है, लेकिन जब मैंने उसके हाथ पे नील देखा और मुझे लगा कि स्कूल की ये ट्रेनिंग प्रैक्टिस और किसी स्कूल में उसने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसकी वजह से हुई, तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये केवल उसकी चोट नहीं थी, ये उसके आगे के भविष्य को एक स्ट्रांगनेस देने की कोशिश की गई थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर कुकून को उसकी तितली माँ उसको कुकून से फोड़ कर बाहर निकाल दे तो वो बच्चा मर जाएगा,
अनटिल अनलेस वो उसको तोड़ने की कोशिश ना करे, पंख ना फड़फड़ाए, उसे चोट ना लगे, तभी उसके पंख विकसित होते हैं और वो एक सक्सेसफुल, एक चुलबुलाती और अच्छी दिखने वाली तितली दिखती है। सो मुझे कोशिश लगता है लोगों को यही करनी चाहिए कि बच्चे नाजुक होते हैं, देखने में कोमल होते हैं, लेकिन अगर उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उनको ताइक्वांडो, उनको और दूसरी चीज़ें, उनको मुक्केबाजी, उनको तलवारबाजी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उनको एक्साइटमेंट भी देती हैं। बच्चों को लगता है कि यार बहुत मज़ा आ रहा है और ये आगे उनके भविष्य को भी बहुत सुरक्षित रखती हैं। जब कहीं बच्चियां कहीं मुसीबत में फंसती हैं या कहीं कोई लोग उनको घेर लेते हैं या ऐसा समय आता है जब उनको लगता है कि यार मेरे बचाने वाला कोई नहीं है, तब वो उनकी पावर निकल कर आती है जो उन्होंने स्कूल में या किसी ट्रेनिंग कैंप में या किसी के थ्रू उन्होंने सीखी है। वो मुकाबला करते हैं और डट कर सामने निकल कर आती हैं। तभी विमेन एम्पावरमेंट को हम शो कर पाते हैं, तभी हम दिखा पाते हैं कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है। लड़के में थोड़ा सा जेनेटिकली थोड़ा सा स्ट्रांगनेस होती है, लेकिन लड़कियों को भी मजबूत बनना है। और ये सारे सेशन जब स्कूल्स में होते हैं तो प्राउड फील होता है कि हम एक ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं जहाँ पे ये सारे सेशंस होते हैं, जहाँ पे उन्हें स्ट्रांग बनाया जाता है। सो बेसिकली बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके स्कूल में भी, जीडी गोयनका में भी ये सारी चीज़ें सेशंस चलते हैं और आप इस पर ध्यान भी देते हैं। थैंक यू जीडी गोयनका। Sir, I truly agree with you. Even my activity is taekwondo. I do it every day. Sir, what's your opinion? In my opinion, teaching self-defense is about building a self-confidence in a student to react and respond to adverse situation. That situation may be putting a student in a physical danger or a harm, and sometimes it is also about responding to an aggressive behavior. कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पर हमला कर रहा हो, होता है बुलिंग, जिसकी अभी हमने जब इस डिस्कशन के शुरुआत में बात करी थी कि कोई दूसरा आपका साथ में फ्रेंड है या फिर क्लासमेट है या कोई सीनियर है जो आपसे एग्रेसिवली बात कर रहा है, गलत टोन में बात कर रहा है, तो आपको वर्बली, आपको टेक्निक्स और मैनरिज्म पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ आप उस एग्रेशन को असर्टिवली कैसे मना करें, कैसे रिस्पॉन्ड करें। तो सेल्फ डिफेंस का एक एस्पेक्ट और है मुझे जो लगता है, वो ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के अलावा वो आपको फिज़िकली बेहतर फिट बनाता है। तो मुझे लगता है अगर जीडी गोयनका सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स और टीचिंग्स को अगर रेगुलरली सारे स्टूडेंट्स को दे रहा है तो भविष्य में ज़रूर ही ये बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में बहुत सहायता करेगा। Security is not a one-day job. It is a continuous process where all of us have to stand together and support one another. तो अंत में मेरा आप सभी से ये प्रश्न है कि वह ऐसा कौन सा फाइनल मैसेज है जो आप हमें देना चाहिए, हमारे प्यारे गोयनकर्स को देना चाहेंगे, जो हमें फ्यूचर के लिए रेडी रखे। You have very rightly pointed it out that security is not a one-day job. It's an ongoing process. It's always a work in progress, and it is about having a synergy between a vigilant government, a proactive school, and engaged parents. When it comes to security, there are multiple dimensions which we should be aware of. There is one physical dimension. We should do hazard mapping from the moment the children step out of the home to the school, like they board the school bus, and right to the point where they come back to home. That what is the process, what are the hazards which they may be facing. They may be physical hazards, they may be emotional hazards, they may be related to digital hazards. So I think every school should engage parents and students together to do hazard mapping. So what a wonderful opinion. So what about you? What is your opinion? सो फाइनली मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो रोज़ की लाइफ है, जो डेली लाइफ हम बिता रहे हैं, उसमें बहुत सारा इंटरफेरेंस दे रही हैं। सो बच्चे, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी ग्रोइंग हैं, जिनको आगे जाके बहुत कुछ दिखाना है, बहुत कुछ बनना है, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू, डिफरेंट गेम्स और इन सब के थ्रू अपने आप को कहीं ना कहीं अपने डायरेक्शन से भ्रमित कर देते हैं। एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं जहाँ उनका जो फ्यूचर है वो डार्कनेस में है। सो मेरा मैसेज यही है सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रोग्राम में, कि जहाँ तक बच्चे हैं उन पे आपको एक नज़र रखनी है।
बच्चे खुद से अपने आप से प्रॉमिस करें कि हमें एआई या टेक्नोलॉजीज़ का उतना इस्तेमाल करना है जो हमारे फ्यूचर को अच्छा बनाए, ना कि हमें वहाँ जाके रुक जाना है जो हमारे फ्यूचर को डार्कनेस में ले जाए। सो बच्चों को भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है। मेरा यही मैसेज है कि आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजीज़ हावी होती जा रही हैं, बच्चों के ग्रूमिंग और बच्चों के विकास के लिए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए हम उनको फिज़िकल पे भी थोड़ा सा जोर दें। वो बाहर प्लेग्राउंड में भी जाएं, वहाँ भी खेलें, अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने फिज़िकल विकास को भी तवज्जो दें और तमाम तरह की चीज़ें, गेम्स वगैरह को अवॉइड करें। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके अपने फ्यूचर को फोकस तरीके से देखेंगे तो वो आगे चल के अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन करेंगे और स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। जैसे मिस्टर चाहर ने जीडी गोयनका का नाम रोशन किया है, आगरा का नाम रोशन किया है, पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता है। सो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह का मैसेज तमाम बच्चों तक पहुँचे और बहुत सारे ऐसे गोयनकन हो जो आगे चलकर वर्ल्ड में हमारे भारत का नाम रोशन करें, जीडी गोयनका का नाम रोशन करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? I strongly agree. सिक्योरिटी, जैसे आपने बहुत सही बताया, इट इज़ नॉट अ सिंगल सेशन, अ सिंगल ट्रेनिंग और अ सिंगल इवेंट. सिक्योरिटी इज़ अ कल्चर दैट इज़ एम्बेडेड इन द स्कूल. ये स्कूल के फ्रेमवर्क्स में रहता है, उसके रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स में रहता है, सोशल एनवायरनमेंट में रहता है और सपोर्ट में रहता है, विच इज़ प्रोवाइडेड टू द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स एंड मैनेजमेंट. So it is very important कि right from physical safety, the right verification systems are in place, CCTV camera monitoring mechanisms are in place. लेकिन उसके साथ साथ जैसे हमने बात की, the students should be made to feel safe and secure. They should feel trusted, they should feel heard. They should never need to undergo any kind of manipulation, shaming or bullying which can scar them and affect them for life. उसके साथ साथ हम लोगों ने डिजिटल सेफ्टी के बारे में काफ़ी बात की, जहां हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि चिल्ड्रन आर सेल्फ रेगुलेटेड, बच्चों में ही वो अवेयरनेस हो. क्योंकि एज टीचर्स और एज पेरेंट्स अगर हम कोई भी डिजिटल डिवाइसेस बच्चों को प्रोवोक करेंगे या प्रिवेंट करेंगे, सो चिल्ड्रन विल ऑलवेज सी इट एज द फॉरबिडन फ्रूट, दे विल बी मोर अट्रैक्टेड टू इट. तो यही कुछ चीज़ें हम अगर मन में रखें तो वी विल बी एबल टू वर्क एज पार्टनर्स एंड विद म्यूचुअल कोलैबोरेशन, द स्कूल, द पेरेंट्स, द स्टूडेंट्स एंड द ब्रॉडर कम्युनिटी. एंड इससे सिक्योरिटी विल बी इंस्टिल्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ. थैंक यू. जैसे पेरेंट्स के लिए तो उनके 1 या 2, 3 बच्चे ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए एक और पूरे स्कूल को पढ़ाना, इसीलिए कहा जाता है कि टीचर्स नेशन बिल्डर हैं. जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो कल किसी न किसी पद पर होंगे, किसी पोजीशन पर होंगे, कोई किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होगा. तो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आज वो डेवलप करेंगे, आज वो सीखेंगे अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, इन हैंड कोऑर्डिनेशन जो है पेरेंट्स टीचर का, वो आगे वो लाइफ टाइम उसको कैरी ऑन करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वो फर्दर आने वाली पीढ़ी को भी उसी को आगे पास ऑन करेंगे. Safety and security, home away from home. This was the podcast for today's session, where we had expert advice. Experts are of course our parents, our lovely dear Goenkans and the parents, those who have shared their insights, their knowledge and their experiences. And my question is to all the parents about their experience at GD Goenka Public School, GAP, Shakhsiyat. So what do you think, sir? आपको कैसा लग रहा है GD Goenka में आकर, specifically at this particular podcast, Shakhsiyat by GAP? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल प्रशासन को, मैम आपको और सभी लोगों को जो भी इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं कि ये मौका दिया. इस तरह के संवाद अक्सर होते रहने चाहिए, टीचर्स और पेरेंट्स अक्सर मिलते रहने चाहिए. केवल पेरेंट्स टीचर मीटिंग ही नहीं, इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, जिससे आगे जाके एक अच्छा आउटकम होता है, बच्चों पे अच्छा असर पड़ता है. थैंक यू सो मच सर, ट्रूली सेड. ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे पॉडकास्ट होने चाहिए और हम इंश्योर करते हैं कि हम ज़रूर ऐसे पॉडकास्ट करेंगे, अपने बाकी पेरेंट्स को भी इनवाइट करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली flourish, grow, excel in all the fields with the help of expert advice, our parents' advisors. Ma'am, what do you say about this? Thank you. It was such a tremendous honor to be here, part of this wonderful podcast that was conducted so well by our confident students. Podcast एक बहुत ही powerful medium होते हैं through which we can exchange our topic, exchange our views, our diverse perspectives on so many different topics.
तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिससे हम एज पेरेंट्स स्कूल कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं. वी कैन कम अप विद सो मेनी आइडियाज़ एंड म्यूचुअल डिस्कशंस दैट विल बेनिफिट बोथ स्कूल, द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट कम्युनिटी. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. It was lovely having you here. It's a pleasure having all the parents together at the same podcast. You people have shared your insights, your experiences. It is definitely going to benefit us and our lovely Goenkans. Sir, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए और वंडरफुल पॉडकास्ट के लिए. आई थिंक बदलते ज़माने के साथ जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, पॉडकास्ट का ज़माना है और इस तरह का इनिशिएटिव जीडी गोयनका ने लिया है, ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है. इस तरह से जैसे कि आप दोनों लोगों ने बताया कि हमें एक्सचेंज करने, अपने व्यूज़ एक्सचेंज करने का मौका मिलता है. हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें स्कूल में चल रही हैं, किस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों का ख्याल रखना है, किस तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं. डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करके अपने आप को ये रियलाइजेशन देते हैं कि हाँ, जो हम कर रहे हैं, जो अपने बच्चों के साथ हमने किया है, जो बच्चों को एडमिशन दिलवाया है, जो वहाँ की पढ़ाई चल रही है, जिस तरह से बच्चों का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है. बच्चों का जो कॉन्फिडेंस, जो 2 बच्चे पॉडकास्ट के इंटरव्यूअर थे, तो उनको देख कर मुझे अच्छा लगा कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है. सो जब बच्चे एक दूसरे को देखते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं. जब इन दोनों बच्चों के क्लासमेट्स आई एम श्योर जब देखेंगे तो वो कहेंगे वो वाह कितना अच्छा बोलते हो तुम लोग, तो उनको भी मन में लगेगा. एक हेजिटेशन होती है बच्चों को बाहर किसी के सामने बोलने का, स्टेज पे परफॉर्म करने का. अब ये जो पॉडकास्ट होगा यूट्यूब के थ्रू पूरे वर्ल्ड में जाएगा, तो जहाँ जहाँ लोग देखेंगे वो कॉन्फिडेंस को दाग देंगे. तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट होते रहना चाहिए. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि प्रिंसिपल सर ने और पूरे मैनेजमेंट ने और आपने इसको कंडक्ट कराया. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for coming. It's definitely our honor to have you here with us. When I called the parents, I invited them. I still remember none of them said a big no. They were ready. They took time out of their busy schedule. Sir has taken time out and he has come here. It's an honor to have you, sir. Please share your insights with us. How are you feeling? Thank you, ma'am. Today's podcast and panel discussion is a part of wider efforts by GD Goenka Public School to create an environment where parents, teachers and school administration come together to create an engaging community. It truly proves that education is truly not a responsibility of school or teachers alone. It's a partnership between community, society and school where we will create an environment which is healthy and safe for our children. I truly appreciate GD Goenka Public School, its principal, for organizing such regular events where we not only interact with teachers but we also interact with our parents, and through YouTube we can get to know the views and perspectives of the parents of other children also with whom we cannot personally meet. It really creates a trust and a sense of security and comfort in our mind that our children are in truly good hands. Thank you, ma'am, very much. Thank you so much, sir. We are glad that our parents are happy, they are satisfied with this podcast. So let's just go ahead and wait for the next podcast, which is going to be there very soon with another panel of another parents, our lovely guest speakers. Till then, Goenka Namaskar.